Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children and I hope that this video finds you very hale, hearty, happy, healthy. So children, with that note, let me tell you that from Kota we are giving you quality level education in classes which are mentioned at back of me. So basically we are providing video lectures for 6 to 8 Olympiads. So we cover the basic level, then we cover the NCERT level, and then we gradually move on to the Olympiad level, right, for 6 to 8. Then 6 to 10 school level examinations, we cover up that. Other than that, we cover up the NTSC, NSC, JS, PRMO, all these things are mentioned here, children. So I would request you all to kindly like, subscribe and share this channel to many more students. Further moving, children, the lecture for today is on percentage. So it is the first lecture for today of percentage, मतलब first lecture of percentage, right children. So इसमें basically this is the lecture for class 8 का lecture है ये, and percentage we will be starting. So we will be understanding how can we how can we represent fraction as percentages, then ratio as percentages, again जो conversions होते हैं, right, those. Then other than that, percentage increase and decrease, the formula for percentage increase and decrease. So we are going to study all these things in today's lecture, children. So stay tuned, and we'll be doing many questions as well, obviously. So please keep your pen, pencil along with, means the paper and pencil along with you, so that you can also practice it at the same time. There will be a lot of calculations involved in it, children. Moving on, this is our super amazing team, and the lectures are available in the playlist. You can go through it as you desire. I mean, जैसा आपकी classes में जो भी topics आपको पढ़ने हैं, well, like I would say कि start attending the lectures. जो current lectures चल रहे हैं वो तो आप attend करो ही सही. Other than that, जो lectures हो चुके हैं, please go through them. मतलब जो भी पुराने lectures हो चुके हैं और आपके छूट गए हैं, तो उन lectures को भी go through करिए, children. And like revision, proper revision करते रहिएगा. That is what I say. Then I'm taking NMTC primary, sub junior as well as 6 to 8 mathematics. This you can see here, children. This is our telegram channel. आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है, जो भी आपका क्लास है उस अकॉर्डिंग ज्वाइन कर लो, चिल्ड्रन, so that whatever latest information that is to be there, that is to be shared with you all, that you'll get it in the notification itself. And even the commencement of the lectures, like you will be intimidated before that, so none of your lectures would also be missed. So that is the use of telegram. That is why we ask you to join the telegram channel according to your class, children. Next, moving on, this is our website talkingtextbooks.in, wherein you will get the packages. You can see it here. So first package is for 6300, second is for 2450 after applying my code AVLIVE. So you get 30% of discount basically after applying my code, and the overall package, which can be seen as 9,000 of rupees 9,000, that will be for 6300. So you will get the study material, test series, and other things are written here, children, right? So you will get all these things for the complete year, right? So it is very affordable. So I would request you all to please kindly share this information with many other students. Other than that, this is a second package, which is the test series. Like if you do not require the study material, you believe that you have enough study material, you can opt for the second package, children. So that will comprise of cumulative test and part test, whose syllabus would be predefined and would be told to you, right? You would be given the information regarding that before the test, so you will be able to prepare properly and have all the analysis, whatever that is required. Like you will be able to understand your strong areas and your weak areas, and where you're like supposed to do more questions and spend more time, like the topics where you're supposed to spend more time. So all this information would be like you will be able to analyze yourself, your knowledge. So that's the use of second package. Again, like see, children, the lectures as well as bi-weekly quizzes are anyways free, so you can attempt it. I would ask you to please attempt it, and they are available on our website only, talkingtextbooks.in. Still further, if you have any queries left, children, regarding how you can pay or how you can get your material, in what mode and all those things, whatever it is,
say how you're supposed to give the test and everything. All these information would be entertained on this number, children. You'll get all your answers on this number, which is 9549041111. So kindly call on this number, and do not have any doubts left in your mind. Clear, children? Moving on, we'll start with our we'll complete the ritual of taking the promise, and then we'll start with our lecture for today, that is on percentage, and which is of class 8th. राइट चिल्ड्रन, उससे पहले हम लोग सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं अलॉन्ग विद इट्स रिविजन, राइट? सो लेट्स डू दिस. So moving on, children, the prerequisite of today's lecture is basically fractions, ratios, decimals. इन सब का जो हम already पढ़ चुके हैं, like we have already studied everything about it in 5th standard, 6th standard, 7th standard, right? Even in 8th as well. So we already know the operations, the properties of fractions, as well as of ratios, as well as of decimals. So we have information about all these things, we know about all these things, and that is the prerequisite of today's lecture as well. So after this lecture, we will be able to understand how we can represent percentage in ratio form, how we can represent fraction or in percentage, means how we can represent fraction as percentage and ratio as percentage. Again, other than that, conversions we will be able to do. Other than that, again, we'll be doing the question, or at least we'll know the formula for percentage increase and decrease, and then gradually we'll do questions also related to that. Clear, children? So let's start with today's lecture. So it is basically percentage. So percentage क्या होता है children? जैसे वो बोल रहा है, the term percent means out of 100, मतलब how many marks you're getting out of 100, or like say there are 100 people, right, 100 students, and how many of them got 75 marks, or how many of them are wearing yellow color t-shirt, right? So all these things. So basically percent means that per 100, per cent. So cent means 100, right? So basically we are calculating anything, जो भी हम compare कर रहे हैं, जो भी हम compare करना चाह रहे हैं, वो हम out of 100 ले रहे हैं, मतलब पर 100 के हिसाब से हम लोग ले रहे हैं उसको, उस तरह से count करें, right? So the term percent means 1 out of 100. Percent is used frequently in all walks of life. तो हम percentages बहुत सारी जगह देखते हैं children. Say like जैसे for example 20% off in shoes, राइट? सो आप शूज़ अगर ख़रीदने जाते हैं, वहाँ पे सेल लगी है, वो बोल रहा है 20% ऑफ है, राइट? सो हर 100 रुपीज़ पे 20 रुपीज़ ऑफ है, ठीक है? दैट इज़ व्हाट इट मीन्स. 79% of people in Australia have internet connection. So among all the people, right? So 79% of people have internet connection, 50% extra. So all these things are there. Percentage is another way of comparing quantities. Basically वही हो रहा है. मैंने वही बोला कि out of 100 कितने जन हैं, आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स मिले, आउट ऑफ 100 कितने पैसे आपको ऑफ मिल रहा है, आउट ऑफ 100 कितने जनों ने के पास इंटरनेट कनेक्शन है. सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर. सो वी लर्न अबाउट द कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज एंड इट्स वाइडर एप्लीकेशन इन डे टू डे लाइफ सिचुएशन. आप देखते ही रहते हैं, राइट? जैसे लाइक किसी कंपनी का अगर इंक्रीज प्रोडक्शन का इंक्रीज हो रहा है, तो कितने परसेंट लास्ट ईयर से कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, या लास्ट ईयर से कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, या उसकी कॉस्ट में अगर कॉस्ट बढ़ी है किसी प्रोडक्ट की, तो लास्ट ईयर से कितनी प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ी है, लाइक कॉस्ट इंक्रीज हुई है, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स, बहुत सारी, मतलब आप लाइफ में बहुत सारी जगह पर परसेंटेज को देखते हैं, राइट? ज़्यादातर जहाँ आपका ध्यान जाए वो है सेल्स के ऊपर, राइट? जहाँ पे सेल लग रही है तो चलो एक्स्ट्रा खरीद लेते हैं, या वट एवर इट इज़, राइट? सो वी सी लाइक इन ऑल दीज कंडीशंस हम लोग यहाँ पे देखते हैं उसको. Clear, children? So moving on with percentage. See, percentage means per 100 of every 100. By a certain percentage means that many hundreds, that many hundreds. मतलब मैं अगर बोल रही हूँ 7%, अगर मैं बोल रही हूँ children 7%, अगर मैं बोल रही हूँ 7%, तो इसका क्या मतलब हुआ? 7/100 मतलब 100 में से 7 पार्ट, राइट? 100 में से 7 पार्ट. क्या बोल रहा है वो? बाय सर्टेन परसेंट वी मीन that many hundreds, right? 7/100
याद है अपन किस तरह से बोलते थे भाई, डेसिमल जब हम पढ़ते थे, डेसिमल सिस्टम क्या होता है भाई, जो हमारा नंबर सिस्टम है उसी का एक्सटेंशन है बेसिकली, राइट। तो जब हम होल नंबर पार्ट को इस तरह से बोल रहे हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, तो जब हमारा डेसिमल पार्ट आता था, व्हाट वी यूज्ड टू नेम इट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, राइट। सो दिस इज hundreds part of that particular number, right? So it is 700. तो 7% का मतलब क्या हुआ कि out of 100 we are talking about 7, right? That is 700. Now the symbol percent is used to express the word percent. मतलब अगर मैं बोल रही हूँ percent, तो उसको express करने के लिए मैं symbol क्या use कर रही हूँ चलिए, सिंपल परसेंट का जो साइन होता है वो, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन एज परसेंटेज, मतलब फ्रैक्शन जो लिखा है उसको हम परसेंटेज में कैसे वो लिखते हैं। अ फ्रैक्शन विद इट्स डिनोमिनेटर एज 100 इज कॉल्ड अ परसेंट, मतलब ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है, ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है इज कॉल्ड अ परसेंट एंड इज इक्वल टू द परसेंट एज द न्यूमरेटर। मतलब अगर 75/100 लिखा है, अगर 75/100 लिखा है, मतलब 75 हंड्रेड्स की बात हो रही है, मतलब 100 में से 75 की बात हो रही। कंपैरिजन समझ में आ रहा है चिल्ड्रन, जैसे अपन कंपेयर करते हैं, राइट। सो 100 में से 75 की बात हो रही है, जिसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, 75 × 1/100, या जिसे मैं 75 हंड्रेड्स भी बोल सकती हूँ जैसा मैंने बोला, या फिर इट इज 75 पर 100, समझ गए। ये अलग अलग लैंग्वेजेस है, मीनिंग एक ही है सबका, 75%। मतलब अगर 75/100 लिखा है चिल्ड्रन, अगर डिनोमिनेटर 100 है तो दैट कैन बी रिटन लाइक दिस 75%। मतलब 1/100 का जो साइन है, 1/100 जो वैल्यू है उसको हटा करके, 1/100 जो वैल्यू लिखी है उसको हटा करके अपन सिंपली क्या लिख सकते हैं, परसेंट लिख सकते हैं। आया चीज़ समझ में, बात आई समझ में। अपन क्वेश्चन करेंगे ऑब्वियसली। नेक्स्ट, रेशियो एज परसेंट, दैट इज ऑल्सो सेम थिंग, वो भी सेम ही है, राइट। क्योंकि हम रेशियो को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन जो लिखा हुआ है उसे रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट की फॉर्म में। जो न्यूमरेटर है दैट इज द एंटीसीडेंट और जो डिनोमिनेटर है दैट इज द कॉन्सिक्वेंट। तो अब रेशियो विद इट सेकेंड टर्म 100 इज ऑल्सो कॉल्ड अ परसेंट। तो अब जब कॉन्सिक्वेंट चिल्ड्रन, ये तो एंटीसीडेंट हुआ, कॉन्सिक्वेंट अगर 100 है, कॉन्सिक्वेंट अगर 100 है तो वो क्या कहलाएगा, परसेंट कहलाएगा, क्योंकि हम उसे बेसिकली 8/100 की फॉर्म में ही लिख रहे हैं। सो दैट बिकम्स आर 8%। अब जैसे यहाँ पर ये मेंशन है, कुछ एग्जांपल्स मेंशन है चिल्ड्रन, 3/10 इक्वल्स टू 30/100, मतलब उन्होंने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। So this becomes 30/100 which can be written, अब देखो 30 जो न्यूमरेटर में था वो एज इट इज लिखा हुआ आ गया, जो डिनोमिनेटर में था 1/100 उसको, उस 1/100 को क्या लिख दिया, सिंपल परसेंटेज का साइन बना दिया यहाँ पर, राइट। परसेंटेज का यहाँ पर साइन बना दिया, ये ठीक है। 100 की जगह पर मैंने क्या लिखा, परसेंट का साइन बनाया। सेम इज द केस हियर एज वेल। 1/2 है, 1/2 इज बेसिकली व्हाट, 50%, हाफ होता है वो, राइट। सो दैट इज 50%। सो 50/100 और 50%, मतलब फ्रैक्शन को या रेशियो को आप डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 100 है दैट मीन्स 2 zeros हैं, दैट मीन्स अगर मैं उसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगी तो मेरे पास डेसिमल प्लेसेस कितने होंगे, 2 होंगे। ये अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं चिल्ड्रन, राइट। अगेन 3/4, 3/4 इज बेसिकली व्हाट, 75%। 3/4 अगर डायरेक्टली मुझे कभी लिखना है कि 1/2 आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड चिल्ड्रन, राइट। तो अगर 1/2 आ रहा है तो उसे मैं क्या लिख दूंगी, 50%। नेक्स्ट अगर 3/4 आ रहा है तो 75%। सो दिस इज व्हाट, रेशियो एज कन्वर्जन, ठीक है। रेशियो को हमने कन्वर्ट करके लिख दिया, मतलब ये रेशियो के फॉर्म में है या फ्रैक्शन बोल लो। जैसे ये रेशियो के फॉर्म में था, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में था। अब फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ये इसका
तरीका हो गया, ठीक है। मतलब 3/4 है, अब 3/4 मुझे फ्रैक्शन दिया हुआ है या 3:4 मुझे अगर रेशियो दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, जो मेरा डिनोमिनेटर था उसको 100 में कन्वर्ट कर लिया। 100 में कैसे कन्वर्ट किया, मैंने 4 को मल्टीप्लाई बाय 25 किया तो 100 आ गया। ऑब्वियसली न्यूमरेटर को भी मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 75 मिल जाएगा। तो मेरा ये जो फ्रैक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, जहाँ पे ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया जहाँ मुझे डिनोमिनेटर 100 चाहिए था तो वो 100 बन गया, राइट। सेम केस 1/2 में भी था, सेम केस 3/10 में भी था कि मैंने उसको 100 डिनोमिनेटर को 100 बना दिया, उसे कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो इसी तरह ही हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं चिल्ड्रन, क्लियर। देन कन्वर्जन ऑफ अ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। To convert a percent into a fraction, we draw percent sign and divide the number by 100। मतलब अब अगर जैसे परसेंटेज साइन दिया हुआ है, मतलब अगर मुझे इस तरह से दिया हुआ है, जैसे मान लो मुझे दिया है 4%, ठीक है। 4% अब मुझे दिया हुआ है, मुझे इसको उसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, राइट। दिस इज गिवन टू मी, मतलब 4% मुझे दिया हुआ है, उसको मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगी चिल्ड्रन, सिंपली 4/100 कर दूंगी, 4/100 कर दूंगी। तो मैंने क्या किया, परसेंट का जो साइन था, मतलब मैं अभी क्या कर रही हूँ चिल्ड्रन, कन्वर्ट कर रही हूँ परसेंटेज को फ्रैक्शन में। मैं कन्वर्ट कर रही हूँ परसेंटेज जो मुझे दे रखी है उसको, अभी तक मैं क्या कर रही थी, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रही थी। तो फ्रैक्शन को मैं परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर रही थी, जहाँ पे मैं जो डिनोमिनेटर था उसको 100 बना रही थी, उसको 100 बना करके, और मैं जैसे मान लो यहाँ पर अगर मैं करूँ, बताऊँ आपको, जैसे यहाँ फ्रैक्शन है, अब है ना, जैसे मुझे दे रखा है, लेट्स से समथिंग लाइक दिस इज गिवन टू मी 25, लेट्स से मुझे गिवन है 1/25, राइट। मुझे गिवन है 1/25, ये फ्रैक्शन मुझे गिवन है। अब मैं क्या करूँगी चिल्ड्रन, इसके अंदर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगी, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगी, तो ये कितना हो जाएगा 4/100, ये कितना हो जाएगा 4/100। तो मुझे क्या पता लगा, मुझे क्या पता लगा कि मेरा डिनोमिनेटर 100 आ चुका है। अब इस फ्रैक्शन को मैं इजीली परसेंटेज की फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब इस फ्रैक्शन को मैं इजीली परसेंटेज की फॉर्म में लिख सकती हूँ चिल्ड्रन। उसमें क्या होगा, 1/100 है तो मैं क्या लिख दूंगी, परसेंट लिख दूंगी, राइट। तो ये मैंने क्या किया, फ्रैक्शन को परसेंटेज की फॉर्म में चेंज किया। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं चिल्ड्रन अपन लोग, कि परसेंट ऑलरेडी है, मतलब परसेंटेज ऑलरेडी मुझे गिवन है, उसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर रही हूँ। तो उसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे चेंज करूँगी, ये जो परसेंटेज का साइन है, ये जो परसेंटेज का साइन है चिल्ड्रन, उसको मैं क्या कर रही हूँ, 1/100 में चेंज कर रही हूँ। मतलब सिर्फ परसेंटेज हटा करके उसको ड्रॉप करके उसकी जगह पर मैं डिनोमिनेटर में 100 लिख रही हूँ, मतलब 1/100 कर रही हूँ। सिंपल सी बात है, इसका यही मीनिंग है। सो ड्रॉप द परसेंट साइन, दैट इज दिस, एंड डिवाइड द नंबर बाय 100, सिंपल। सो दस x%, मतलब x% अगर लिखा हुआ है उसका मतलब x/100, या 36% लिखा है तो 36/100। आप चाहो तो उसको और लोएस्ट फॉर्म में ला सकते हो, राइट। सो लोएस्ट फॉर्म में आप लाओगे तो जैसे इसको भी अगर मैं लाऊं तो 1/25, राइट। तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया 1/25। अगर इसको करना चाहें 36/100 तो 9/25 हो जाएगा। सो दैट इज़ द वे जहाँ पे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। बस परसेंट का साइन हटा करके उसको डिवाइड बाय, जो भी मेरा नंबर है उसको डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। क्लियर है चिल्ड्रन? आई होप इतना समझ में आया। नेक्स्ट करते हैं अपन, छाप लो एक बार इसको। ठीक है, नेक्स्ट करें अपन कन्वर्जन ऑफ अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज एंड वाइस वर्स। ये हमने अभी देखा। तो देखो इसके अंदर वो क्या बोल रहा है, टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज वी मस्ट मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100। मतलब अगर मुझे कोई फ्रैक्शन उसमें दे रखा है, अगर फ्रैक्शन मुझे दे रखा है, फ्रैक्शन मतलब कोई फ्रैक्शन गिवन है, मुझे उसको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है।
So to convert a fraction into percent, we must multiply the fraction by 100, multiply the fraction by 100 and put the percent sign to obtain the required percentage. तो अब कैसे करूँगी मैं चिल्ड्रन? सी a by b है तो उसको मैं क्या लिख दूंगी? बेसिकली वो क्या कहना चाह रहे हैं चिल्ड्रन? मान लो जैसे मुझे गिवन है 4/5, ठीक है, 4/5 फ्रैक्शन मुझे गिवन है. अब मुझे इसको परसेंटेज में चेंज करना है. परसेंटेज में चेंज करना है तो मैं किस तरह करूँगी? आई विल सिंपली मल्टीप्लाई इट विथ 100. मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, पर मल्टीप्लाई किया तो मैं यहाँ पे परसेंट का साइन भी लिखूंगी, राइट मैं परसेंट का साइन भी लिखूंगी क्योंकि परसेंट एक्चुअली मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? इट मीन्स 1/100, राइट. परसेंट का साइन मतलब 1/100. तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो. पर पॉइंट ये है कि 100 से डिवाइड करने का मतलब मैंने उसको परसेंट साइन लिख दिया है ना, और मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो अब क्या हो जाएगा? मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा जो क्या होगा? 5 2 10 हो गया, 2 and 4 2 8, सो 80%, राइट. ये कितना आ गया? 4/5 जो मेरा फ्रैक्शन था उसको मैंने परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया चिल्ड्रन? इनटू 100 और जो परसेंटेज का साइन था वो लगा दिया, राइट. सो इनटू 100 करते मैं उसको सॉल्व कर सकती हूँ जो सिंपली अपन सॉल्व करते हैं वैसे, और फिर मैं उसको परसेंटेज में लिख सकती हूँ. परसेंटेज साइन मैंने एज इट इज लिख दिया. सो दैट इज द थिंग चिल्ड्रन, जब भी आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो अपन क्या करेंगे? उसमें इनटू 100 कर देंगे और परसेंटेज का साइन एज इट इज लगा देंगे, राइट. कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल इनटू परसेंटेज. अब डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना कैसे करेंगे? टू कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू अ परसेंटेज वी शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट 2 places टू द राइट. सो लाइक सी चिल्ड्रन, अगर मुझे 20% गिवन है तो मैं क्या करूँगी? मैं वो क्या बोल रहा है? शिफ्ट द डेसिमल प्लेसेस टू द राइट साइड. तो अब उसमें वो क्या कर रहे हैं? जैसे 20% दिया हुआ है तो अब उन्होंने क्या किया? टुवर्ड्स लेफ्ट साइड करेंगे, ऑब्वियसली उसमें गलत लिखा हुआ है, राइट चिल्ड्रन. सो हम क्या कर रहे हैं? देखो 20% मुझे ऑलरेडी गिवन है तो मैं क्या कर रही हूँ इसको? व्हाट एम आई डूइंग? 20/100, राइट. सो दिस गेट्स कैंसिल और ये क्या हो जाएगा? 0.2, राइट. और अगर मुझे 0.2 ऑलरेडी गिवन है, 0.2 ऑलरेडी गिवन है तो टुवर्ड्स राइट साइड, वो सही बोल रहा है चिल्ड्रन, टुवर्ड्स राइट साइड हमें 2 places तक मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा. तो वो कितना हो जाएगा? जैसे 0.2 है, राइट, वो एक्चुअली उल्टा चल रहे हैं, लाइक दे आर मूविंग दिस साइड. सो वो क्या करना है? अपने को क्या करना है? बेसिकली 2 decimal places तक राइट साइड शिफ्ट करना है इस डेसिमल को, राइट. तो जैसे मेरा 0.2 है तो अब मैं क्या करूँगी? 2 पॉइंट्स आगे बढ़ूंगी, मतलब राइट साइड शिफ्ट करूँगी. तो ये कितना हो जाएगा? 0.2 और यहाँ से डेसिमल चला, यहाँ पे एक और 0 आया और फिर यहाँ पे डेसिमल आ गया. क्लियर चिल्ड्रन? तो ये कितना हो जाएगा? 20%. 20% ही है वो, राइट. समझ गए? मतलब जैसे देखो अगर मुझे ये गिवन है 2.22 इज गिवन टू मी. अब मैं क्या करूँगी चिल्ड्रन? इसको 2 decimal पॉइंट आगे बढ़ा दूंगी, राइट साइड बढ़ा दूंगी. इट इज रिटन करेक्ट, इट इज करेक्टली रिटन. वो एक्चुअली उल्टा चल रहे हैं, राइट. मतलब फ्रॉम हियर टू हियर वी आर सपोज टू गो. सो इसमें मैं क्या करूँगी? राइट साइड जब मैं जंप करूँगी 2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 222%, ठीक है. दिस इज द वे. ब्रॉडर वे क्या है? अपॉन 100 कर दो, क्या हो जाएगा? अपॉन 100 लिखते देखो बेसिकली क्या हुआ? 2.22, इसको अपॉन 100 कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 1/100 है. 222 एज इट इज लिखा, 1/100 मतलब इसको 1/100 को, दिस इज बेसिकली दिस. तो 1/100 को मैं क्या लिख सकती हूँ चिल्ड्रन? परसेंट. ब्रॉडर सेंस इसका यही है, ठीक है. मतलब बेसिक मीनिंग तो उसका यही है कि भाई डेसिमल हटा दो. जैसे मान लो 0.002 है, अब 0.0002 है तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ? 2 अपॉन दिस इज व्हाट 4 टाइम्स, राइट. सो 100 इंटू 100 तो 1 और इंटू 1 कर दो, राइट. तो ये तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इसको मैं कैसे लिख पाऊंगी चिल्ड्रन? 0.02%, राइट. तो 0.02% को मैंने उसमें लिख दिया, मतलब जो मेरा डेसिमल था 0.0002
उसको मैंने डेसिमल में उसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। सो ये बेसिक तरीका होता है चिल्ड्रन कि जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन को तो मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज का साइन लगा रहे हैं, और अगर डेसिमल को कन्वर्ट कर रहे हो तो ब्रॉडर पिक्चर ये है कि आप बेसिकली डेसिमल हटा करके 1/100 जनरेट कर रहे हो। 1/100 जनरेट होते हैं, उस 1/100 को तो हम परसेंटेज लिख रहे हैं, बाकी बची हुई चीज़ों को एज इट इज़ वो नंबर काउंट हो रहा है, ठीक है। पर उसको हम समझ कैसे रहे हैं, इस तरह से कि भाई देखते ही सीधे हमें आ जाए तो हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड जो जहाँ पर भी मेरा डेसिमल नंबर है उसको राइट साइड 2 टाइम्स जंप कराओ, 2 डेसिमल प्लेसेस तक राइट साइड लेकर के आओ और फिर बस वहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा दो। क्लियर है? मतलब ये तो एक कुछ इसका लॉजिक यही है, पीछे का लॉजिक यही है। चलो ठीक है, तो प्लीज़ कॉपी इट डाउन। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन। ये तो हम समझ ही गए, ये तो हमने पहले पढ़ ही लिया था। देन परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, अगर परसेंटेज समवेयर कहीं कहीं कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे परसेंट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा होगा। ऑल्दो वी आर गोइंग टू डू सच क्वेश्चंस, डोंट वरी। परसेंटेज में हम काफ़ी क्वेश्चंस कर रहे होंगे चिल्ड्रन, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस, राइट। सो परसेंट इंक्रीज अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन में पूछ रहा है तो मैं क्या करूँगी, इंक्रीज कितना हुआ, मतलब जो फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसमें जो इंक्रीज हुआ है, राइट, फाइनल वैल्यू ऑब्वियसली बड़ी है तभी इंक्रीज हुआ है, अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 होगा। डिक्रीज परसेंटेज में कितना होगा चिल्ड्रन, डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। क्लियर है चिल्ड्रन? तो ये एक ब्रॉडर पिक्चर है इसकी, मतलब ये हमारे क्या है, फॉर्मूलाज हैं बेसिकली चिल्ड्रन। तो हम इन फॉर्मूलाज को एज इट इज यूज़ कर लेंगे। अगर डिक्रीज परसेंट पूछता है तो मैं क्या करूँगी, डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, और इंक्रीज पूछता है तो इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। नाउ व्हाट डज इट सेज, अ परसेंटेज इज एन इंक्रीज और डिक्रीज गिवन एज percent of the original amount. Percent increase describes an amount that has grown and percent decrease describes the amount that has reduced. ठीक है, ये समझ गए हम लोग। एंड परसेंट चेंज क्या होगा, कितना परसेंट चेंज हुआ, तो उसका फॉर्मूला क्या है चिल्ड्रन, ये अमाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, अमाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट। अब कितना इंक्रीज हुआ, एक्सक्यूज मी, कितना इंक्रीज हुआ है कितना डिक्रीज हुआ है, ये हमको कैसे पता लगेगा चिल्ड्रन, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करके, राइट। जो भी मेरा ओरिजिनल वैल्यू है और मेरा फाइनल वैल्यू है उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मुझको इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है ये पता लग जाएगा। अपॉन ओरिजिनल वैल्यू से ही होता है चिल्ड्रन, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू आई है, जो ओरिजिनल वैल्यू आई है उसी से ही हम इस परसेंट इंक्रीज, क्योंकि भाई जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसी में ही तो कुछ चेंज हुआ है, तभी तो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो वो वहीं से अपन कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाता है वो, राइट। सो दिस इज परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे क्वेश्चंस की। अपन ये चंद क्वेश्चन है चिल्ड्रन, इनको अपन सॉल्व करेंगे, धीरे 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 बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चिल्ड्रन अब अपन आज, राइट। सो लेट्स डू इट। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट सेज कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब मुझे जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसको मुझे सिंपली परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो अगर मुझे गिवन है 49 अपॉन 100, राइट, 49 अपॉन 100 अगर गिवन है तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकती हूँ। 49 अपॉन 100 को मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ कैसे, ये जो मेरा 1 अपॉन 100 है ये डायरेक्टली 49% के फॉर्म में हो जाएगा। मतलब ये लिखा हुआ क्या है, एक्चुअली ये लिखा हुआ क्या है, ये इस तरह से लिखा हुआ है 49 इंटू 1 अपॉन 100। सो 49 इंटू 1 अपॉन 100 इस 1 अपॉन 100 को मैं परसेंट लिख सकती हूँ, तो ये हो जाएगा 49%। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया 49% में। सेकंड को कैलकुलेट करते हैं अपन चिल्ड्रन। सेकंड क्या बोल रहा है यहाँ पर 19 अपॉन 20।
सो 19/20 जो फ्रैक्शन है मेरा, मैं डायरेक्टली क्या करती हूँ इसको, चाहो तो आप इसको जो डिनोमिनेटर है उसको 100 बना सकते हो, नहीं बनाना है जस्ट अ सेकेंड, तो इसमें मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगी और इसको परसेंट लिख दूंगी। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया है, 135%, राइट, 135% हो गया चिल्ड्रन। नेक्स्ट थर्ड वाले को करें अपन, थर्ड वाले को सॉल्व करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। सो थर्ड वाले को अपन सॉल्व करते हैं, दैट इज 13/8। इसमें भी सेम लॉजिक है कि मुझे परसेंटेज में चेंज करना है, तो मैं इंटू 100 कर दूंगी और परसेंट का साइन हो जाएगा वो, दिस इज 95 चिल्ड्रन। कैलकुलेशन मिस्टेक 95%। नाउ अब ये कितना होगा, यहाँ पे अपन इसको कैलकुलेट करेंगे, सो दिस बिकम्स 2 and 25। तो अब मैं इसको कैसा कैलकुलेट करेगी, 25 into 13 is 5 3 is 15 and 3 2 6 and 7 and 5 and 2, so this is 5 7 12 and 325 upon 2, which will be 2 6 are 12 and 2 2 are 4.5, so 162.5% हो जाएगा ये, तो जहाँ तक मुझे लगता है ये सही होना चाहिए। और फिर फोर्थ वाले को करते हैं, नेक्स्ट है फोर्थ वाला, सो दिस इज 8.2। अब यहाँ पे पॉइंट है 8.2 है, तो मैं इसको क्या कर दूंगी 8.2 अपॉन 125। सो अगर मैं इस ज़ीरो को हटाना चाहूँ तो ये इस तरह से आ जाएगा इंटू 100, सेकेंड गलत लिख दिया मैंने, सो ये कितना हो गया, दिस बिकम्स 5 2s are 10 25, so this is 2 2s are 4 and 8 2s are 16 upon 25, और यह हो गया किसके बराबर, मुझे बिल्कुल नहीं पता, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा इसको। सो दिस इज 25 into 4 is 100, 4 is 100, 125 and 6 30, राइट, ये हो गया, क्या मैं सही कर रही हूँ, 30 12 15 150 सही है बिल्कुल, 4 एंड दिस इज 5 and 6 1 and 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 and 5 which is 125, और ये कहीं पहुँचना चाहिए 3 and 150 हो गया ये, जो कि हो जाएगा ये, तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया 6.56% मेरे हिसाब से। अब इसको एक बार छाप लो, तब तक मैं भी चेक करूँ कि कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गया यहाँ पर कहीं पर। ठीक है, और कैलकुलेशन मिस्टेक हो भी गई हो तो आप लोग चेक कर लेना चिल्ड्रन, अगर कहीं पे ऐसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो भी गई है तो आप लोग चेक कर लेना इसको, जब तक मैं भी चेक कर लेती हूँ। वन 162.5 ये भी सही है बिल्कुल, और 8.2 yes, the calculation is correct।
नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन। नेक्स्ट वो बोल रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। अगेन इसको भी सेम करना है स्टूडेंट, ये आप लोग कर लेना। वही सेम बात है 19.6 अपॉन 500 इंटू 100, सेम चीज़ करनी है। अभी मैंने कुछ क्वेश्चन करके बताए, ये वाले आप कर लेना चिल्ड्रन। नेक्स्ट ये करते हैं अपन, व्हाट डज इट सेज, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल फ्रैक्शंस। मतलब मुझे इनको क्या करना है, ये जो परसेंटेज दे रखी है उसको मुझे क्या करना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में निकालना है, ठीक है। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में अपन लिखते हैं इसको, दिस इज 27.1%, ठीक है। तो परसेंट दे रखा है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, परसेंटेज को मैं हटा करके 27.1 अपॉन 100, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन मतलब डेसिमल भी आ रहा है और फ्रैक्शन भी आ रहा है, तो 27.1 अपॉन 100, ज़्यादा चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन 2710 अपॉन, ओ सॉरी नॉट 1, यहाँ पे नहीं आएगा, अपॉन 1000 हो जाएगा, राइट। सेकेंड क्वेश्चन है 61.3, दैट इज 61.3%। तो मैं उसको कैसे लिख सकती हूँ, 613 अपॉन 1000। मतलब बेसिकली क्या कर रहे हैं अपन, इस परसेंट साइन को ड्रॉप कर रहे हैं और परसेंट साइन की जगह अपन 1/100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेसिकली, है ना। तो 1/100 से किया, और क्योंकि एक डेसिमल था, एक डेसिमल प्लेस था, तो उसको मुझे हटाना था, तो मैंने क्या किया, अपॉन 1000 कर दिया, राइट। थर्ड वाला, सो दिस इज 32.9% है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, उसको भी मैं इसी तरह लिख सकती हूँ 329 अपॉन 1000। इसको भी मैं इस तरह इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज फोर्थ इज 0.125%, राइट। तो अब इसको मैं क्या कन्वर्ट करूँगी चिल्ड्रन, 125 अपॉन 100 इंटू 10⁻3, राइट, या 1000 कर देते हैं, राइट। 10⁻3 हो गया। अब ये डायरेक्टली हो जाएगा 25 से, विच विल गो हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स, और ये जाएगा 40 टाइम्स, एंड ये हो जाएगा 5 8 ज़ा 40, सो दिस बिकम्स 1/8 इंटू 100, या 1/800, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, राइट। और डेसिमल फ्रैक्शन में लिखने को बोल रहा है ये, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ चिल्ड्रन, सी 1/8 इज 0 पॉइंट हो जाएगा ये 8 1 ज़ा 8 एंड 2 8 2 ज़ा 16 एंड 8 5 ज़ा 40, 0.125 वही आएगा चिल्ड्रन, 0.125 ही आएगा ये। तो इसको अपन कर देते हैं इरेज, राइट। और क्योंकि वो डेसिमल फ्रैक्शन में लिखने के लिए बोल रहा है, तो मैं इसको सिंपली इतना ही लिख सकती हूँ कि मैं 125 अपॉन 1000 लिख सकती हूँ, राइट। क्योंकि वो क्या बोल रहा है, वो मुझे डेसिमल फ्रैक्शन में लिखने के लिए बोल रहा है, तो मैं इसको यहीं छोड़ दूंगी, मतलब 0.125 अपॉन 100, इस तरह से, राइट। 0.125 अपॉन 100, क्योंकि डेसिमल फ्रैक्शन में लिखने के लिए बोल रहा है। मतलब मैं अगर उसको करूँगी भी तो अपॉन में अपने पास 800 आ रहा है, राइट। So that is the thing. Next is fifth, 7.85 अपॉन 100%, का साइन मैंने हटा दिया, तो ये कितना हो जाएगा 785 अपॉन, मतलब इसको भी अगर मैं हटा दूंगी चिल्ड्रन तो ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है। फिर ये डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। मतलब वो बोल ही नहीं रहा है, उसको लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए नहीं बोल रहा है, वो डेसिमल फ्रैक्शन में ही चाहता है, राइट। सो 785 अपॉन, ये तो 100 तो रहेगा इसे क्योंकि परसेंट का साइन हटा है, और फिर बाकी के दो डेसिमल प्लेसेस और हट जाएंगे। देन सिक्स्थ वाला, दैट इज 11/8, ओके। सो 11/8 है, इंटू 1/100 है, राइट।
तो इसको मैं लिख सकती हूँ 8 1 ज़ा 8, 3 एंड दिस इज 8 3 ज़ा 24 एंड 6 7 ज़ा 56 एंड 8 5 ज़ा 40, राइट। मतलब 1.1 के बाद ही यहीं से ही लग जाएगा 1.375 अपॉन 100 इस तरह से होगा, या ये हो जाएगा 1375 अपॉन 1 2 3। दिस शुड बी द थिंग, ऐसा मुझे लगता है कि ये करेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से चिल्ड्रन। क्लियर है? क्लियर है चिल्ड्रन? नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन। ये भी सेम ही है, सेम चीज़ है चिल्ड्रन, इसमें भी दिस इज ऑल्सो सेम। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन। तो मैं क्या कर रही हूँ, 32.9% है, फिर इसको भी मैं, अच्छा इसको अपने को फ्रैक्शन में चेंज करना है, इसको अपने को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है, ऐसा नहीं है, अपने को सिंपल इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो मैं फर्स्ट वाले को क्या करती हूँ, 32.9% है, तो मैं परसेंट का साइन ड्रॉप कर दूंगी। परसेंट का साइन अगर ड्रॉप करूंगी तो ये कितना हो जाएगा, 32.9 मतलब अपॉन 100, और एक इसका क्या हो जाएगा 1000। तो ये सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें वो ऐसा कुछ नहीं बोल रहा कि डेसिमल फ्रैक्शन में करना है क्या, पर वो आई इसी में ही रहा है तो अपन ऐसा ही लिख देंगे। सेकेंड इज 6 1/4, 6 1/4%। तो इसको मैं पहले उसमें चेंज कर लूँ, 25/4% है, तो मैं इसमें चेंज कर दूँगी इसको 25/4 इंटू 100, तो यह हो जाएगा 1/8। दिस विल बी 1/8, मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो मैंने इस तरह से कर दिया। देन थर्ड दैट इज 26 2/3, 26 2/3 है, 6 3 ज़ा 18, दिस इज 6 3 ज़ा 18 एंड 20 एंड 18, 8 एंड 1, 3 2 ज़ा 6 एंड 7 7 7 78 80 अपॉन 3। तो अब ये क्या है, परसेंटेज में है, राइट। सो 80/3% हो गया, सो 80/3 इंटू 100, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, सो 4/15 हो गया। 4/15 मतलब 26 2/3% को 4/15 में मैंने कन्वर्ट कर दिया, मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे वो नहीं बोल रहा है कि मुझे डेसिमल फ्रैक्शन चाहिए। सो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है चिल्ड्रन, जहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 100 1000 10,000 इस तरह के डिनोमिनेटर्स आते हैं। और सिंपल फ्रैक्शन वो बोल रहा है कि सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो अपन इसी तरह कर देंगे। नेक्स्ट इट सेज फोर्थ वाला 12%, 12% है। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो वेरी सिंपल, 12/100 कर दिया मैंने, 3 टाइम्स जाएगा और ये 25, सो दिस बिकम्स 3/25, राइट। तो 3/25 इसका फ्रैक्शन में अपन ने कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन चिल्ड्रन। नेक्स्ट इसको भी अपने को सेम करना है, इसको भी फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना है, सो लेट्स डू इट। 6.25 है, 6.25 को मैं अपॉन, मैं 2 बार में करना पसंद करूँगी क्योंकि ऐसा मेरा मन है। सो दिस इज़ बेसिकली इट विल गो 25 टाइम्स, ये 25 टाइम्स जाएगा बिकॉज 25 स्क्वायर इज 625 ओनली। सो ये 25 हो गया और ये 4 टाइम्स जाएगा। सेम इज़ द केस यार, ये भी कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/8, राइट। 6 वाले को करते हैं अपन। 6 वाला क्या बोलता है, 8.8 8.8
0.8% है, तो मैं सिंपल इसमें क्या करूँगी, 8/1000, मतलब पॉइंट यही है कि परसेंटेज को हटा करके मैंने 100 लगा दिया नीचे, और ये पॉइंट था तो उसको मैंने 1/10 कर दिया। अब 4 2 8 25 1/125 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट 7th वाला करते हैं अपन, दिस इज 0.06%, तो मैं इसमें क्या कर दूंगी, 6 सिंपल। अब इसको मैं कन्वर्ट कर मतलब 2 से अपन कर देंगे 50, तो यह हो गया कितना, 3/5000 हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट को आप करते रहना 8th वाले को, ठीक है, दैट इज योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन। नेक्स्ट चिल्ड्रन, ये कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू परसेंटेज, तो मैं इसका एक क्वेश्चन करके बता देती हूँ चिल्ड्रन। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये डेसिमल है, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इफ़ यू रिमेंबर कि इसको क्या करना है, ये 0.6 है, तो वो क्या बोलता है, 2 डेसिमल प्लेस तक राइट साइड शिफ्ट कर दो और परसेंटेज लग जाएगा। तो ये क्या हो गया बेसिकली 60%, राइट, 60% हो गया। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये कितना होगा, 6/10 है ये, और इनटू मुझे क्या करना होगा 100 और परसेंट का साइन, तो ये ऐसे कैंसिल हो गया और क्या बन गया 60% बन गया। जो हम बेसिकली अप्लाई कर रहे हैं, जो मेथड अपन अप्लाई कर रहे हैं पीछे का, वो ये है कि 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन, और उसका मीनिंग क्या है, वो ये है कि हम 2 बारी राइट साइड डेसिमल को शिफ्ट कर दे रहे हैं, सिंपल से। अब जैसे 0.42 है, सेकेंड क्या है 0.42 है। अब 0.42 अगर है तो मैं क्या कर रही हूँ, 2 बारी उसको राइट साइड जंप कर रही हूँ, राइट, तो ये कितना हो रहा है 42% हो रहा है सिंपली, राइट। तो हमें समझ में आ गया चिल्ड्रन कि व्हाट इज हैपनिंग। सो आई होप चिल्ड्रन दिस इज क्लियर। इस तरह से आपको आगे के क्वेश्चन करने हैं, जैसे 0. ये है 0.07 थर्ड वाला, राइट, 0.07 है, तो अब इसमें 2 साइड जंप करा दिया, कितना हो गया 7% हो गया। देन फोर्थ में 0.005 है, तो व्हाट डज दिस बिकम, दिस बिकम्स, अब यहाँ पे 2 साइड जंप करा है तो कितना हो गया 0.5%, क्लियर है। बेसिक मीनिंग क्या है, 5 आप क्या कर रहे हो, 5/1000 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, एक 0 में अभी भी बचा है, तो 0.5% हो गया, क्लियर चिल्ड्रन। सो दिस इज इट फॉर टुडे। ये क्वेश्चंस अपन बाद में देखेंगे फॉर श्योर। सो यस चिल्ड्रन, thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye.